Welcome all. Let's start today with the fourth chapter in English, and that is A Truly Beautiful Mind. Now, you must be knowing about a genius, a great scientist, that is Albert Einstein. And here we are going to learn some important or read some important facts about his life. And before you read, who do you think of when you hear the word genius? And who is a genius according to you? What qualities do you think a genius has? Now we shall now read about a young German civil servant who took the world by storm. That is, who had surprised the world about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers which you will know later: light, the motion of particles, electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but it changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. That is, if I call you as a genius, I mean that you are equal to Einstein. So Einstein now became a synonym for genius. Now as you see over here, meaning is provided to you. Definition of electrodynamics, that is here the word that came. A branch of physics that deals with the effects arising from the interactions of electric currents with magnets, with other currents, or with themselves. And physical rules, that is, even after 50 years of his death, this person still rules, and that is, we still follow him, and this person as a genius is remembered and will be remembered in future for years. And let's start with the chapter over here. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. मतलब कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न हुए थे इस छोटे से सिटी में, बट ब्यूटीफुल सिटी इट इज़, तो कभी किसी को पता भी नहीं था कि ये बहुत ग्रेट बनने वाले हैं या द वर्ल्ड वुड नो हिम फॉर द यू कैन से रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड ऑल, दैट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. अब मम्मी को ये लगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी को, कि शायद एल्बर्ट फ्रीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक? अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन who is unusual, means not normal, and doesn't behave, look or think like others. मतलब कि एल्बर्ट की मदर को ये लगा था कि एल्बर्ट इज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड मे बी, और ही डजंट लुक एंड बिहेव लाइक अदर्स. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. बच्चे 1-1.5 साल में बोलना शुरू कर देते हैं काफ़ी कुछ. येस, यू मस्ट बी नोइंग when you see small children around you. But Albert Einstein, till the age of 2.5, उन्होंने बोलना ही नहीं सीखा था. Now when he finally did learn to speak, he uttered every 2 बार बोलते. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. अब आइंस्टाइन को बेचारे को पता ही नहीं था कि भाई क्या करे दूसरे बच्चों के साथ, और जब अगर वो खेलने भी जाते तो दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाते विद द नेम ब्रदर बोरिंग. सो द यंगस्टर प्लेड ऑल बाय हिमसेल्फ एंड नेचुरली, अब जबकि बच्चे अगर तुम्हें चिढ़ा रहे हो तो यू वुड ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम दोज बॉयज और फ्रॉम योर फ्रेंड्स इन स्कूल और एनीवे. तो तुम फिर अकेले रहने की कोशिश करोगे. कुछ ऐसा ही हुआ आइंस्टाइन के साथ कि उनको पसंद नहीं आया बच्चों के साथ खेलना, क्योंकि वो उसे चिढ़ाते थे. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. अब देखो,
स्कूल के हेडमास्टर ये कुछ भी प्रोफेशन पिकअप कर ले लाइफ में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी करने दो उसे, क्योंकि सक्सेस तो मिलने वाली है नहीं. सो नेवर अंडर एस्टिमेट एनी चाइल्ड इन लाइफ. जो आज हमें दिख रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, मे बी आफ्टर 10 years we see that person as a great personality. And Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. अब ये तो कई बार होता है कि मम्मियों को चाहिए कि मेरा बच्चा ये सीखे, वो सीखे, डांस सीखे, ये मम्मी की विश है, तो बच्चे सीख लेते हैं क्योंकि मम्मी भेज देती है उस क्लास में. उसी तरह से आइंस्टाइन की मम्मी को क्या चाहिए था कि वो वायलिन प्ले करे. अब बेचारा एट द एज ऑफ 6 वायलिन सीखने चला गया. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट. ये एमेच्योर मतलब डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन अ प्रोफेशन. तो अब हुआ ये कि वायलिन तो उन्होंने सीख लिया. अब वो अपनी खुशी के लिए वो वायलिन बजाते थ्रू आउट हिज लाइफ. सो दैट वॉज अ स्किल जो उन्होंने लाइफ लॉन्ग मेंटेन की. बट एल्बर्ट वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट. वो बेवकूफ़ तो थे नहीं, ना वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, ऐसा तो कुछ था ही नहीं. बट टीचर्स ने ऐसे मान लिया था कि ये बहुत ही अनयूजुअल बच्चा है, कुछ नहीं करेगा लाइफ में. But he was not a bad student. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. मतलब कि अभी तो वो 1 साल और 3 महीने के हुए थे, तभी उनकी फैमिली मूव हो गई और उसे स्कूल जाना पड़ा वहाँ की म्यूनिक सब्जेक्ट. और हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स तो मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. अब ये किसी को अच्छा लगता ही नहीं, किसी भी बच्चे को. दैट इज, यू कैन सी ओवर योर द मीनिंग, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम लेवल. मतलब कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन और या फिर बहुत ही ऑर्डरली फॉर्म स्कूल में प्रेजेंट करना अपने आप को, तो ये रेजिमेंटेशन स्कूल के आइंस्टाइन को पसंद नहीं आई. And it often clashed with his teachers. और हमेशा टीचर के साथ उसकी क्लैश हो जाती. At the age of 15, he felt so stifled, मतलब suffocated कि भाई ये स्कूल की सिस्टम मुझे पसंद नहीं है. So he left the school for good. तो अच्छे के लिए ही शायद उन्होंने स्कूल छोड़ दी. Now, his son had moved to Milan and left their son with relatives. अब 1 साल पहले एल्बर्ट के पेरेंट्स शिफ्ट हो गए मिलान में और बच्चे को छोड़ दिया रिलेटिव्स के पास. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, मतलब लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच. अब लिबरल मतलब जहाँ पे लोग दूसरे के ओपिनियन को समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे लोग तुम्हें समझ सकते हैं, तुम्हें समझते हैं, एंड दे रिस्पेक्ट योर थॉट्स, दे रिस्पेक्ट योर ओपिनियन. तो ये थोड़ा लिबरल था इस सिटी में. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग, एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स ऑल्सो. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी. फिजिक्स में उनकी इंटरेस्ट थी और स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सोचा चलो मैं ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाई कर लूँ. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अट्रैक्टेड और अपील्ड टू दिस डैशिंग यंग मैन, हैंडसम स्मार्ट यंग मैन विद द वॉल्रस मुस्टैच. वॉल्रस मुस्टैच देखोगे जब मैं तुम्हें एक पिक बताऊंगी उनकी, मोटी मोटी मूछें, स्मार्ट यंग मैन. तो साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था. एंड नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये मोटी मूछें उनकी, राइट, हैंडसम यंग मैन. दिस वॉज एट द एज ऑफ 21 एंड आइंस्टाइन इन 1955, दैट इज ईयर इन 1900 ही वॉज 21, ईयर इन 1955 एड अप, आई थिंक सो योर मैथ्स इज टू गुड, very close to 70 years he was over here.
so handsome young. He also felt a special interest in a fellow student, that is Mileva Merrick. अब उनकी दोस्ती बढ़ी एक फेलो स्टूडेंट के साथ जिनका नाम था मिलेवा, whom he found to be a clever creature. उन्हें लगा कि ये स्टूडेंट, फेलो स्टूडेंट मतलब कि साथ में पढ़ने वाला स्टूडेंट बहुत ही क्लेवर है. दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड. सर्ब मतलब सर्बिया से. तो दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब यूरोप में बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी उस ज़माने में जो विमेन को डिग्रीज देती, और ये यूनिवर्सिटी ऐसी थी, तो इसलिए ये यंग लेडी आ गई स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने ताकि उसे डिग्री मिले. दैट इज़ अ फ्रेंड against the Philistine. Now Philistine मतलब क्या? A word used disapprovingly to talk about people who don't like art, literature or music. अब उन्हें इसमें, इस लेडी में मतलब कि मिलेवा में एक अच्छी फ्रेंड मिली and with whom he was constantly at odds. कई बार तो तू मैं हो जाती, जैसे कोई टॉपिक पे जब डिस्कशन होते. कपल फेल इन लव आफ्टरवर्ड्स, फिर दोनों को प्यार हो गया. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, दैट इज लविंगली. अब तब दोनों एक दूसरे को जो प्यार करते थे वो प्यार वर्ड्स में किस तरह से वो भेजते एक दूसरे को, through letters. अब उस Einstein used to write, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." मतलब कि वो अपने प्यार का अगर इजहार करते तो भी साइंटिफिक वे. And later in 1900 at the age of 21 Albert Einstein was a university graduate but unemployed. अब हमने 21 की एज की उनकी एक पिक देखी आगे, तो तब वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी लेकिन काम नहीं मिला था. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bonn. अब हुआ ये कि काम तो मिला नहीं. उन्होंने ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, फिर वो ट्यूशन लेते बच्चों का, दैट इज गिव प्राइवेट लेसन, एंड फाइनली ही गॉट अ जॉब 2 साल के बाद, दैट इज इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस. अब पेटेंट मतलब क्या? मतलब कि जैसे हमारे किसी प्रोडक्ट को जो हम लॉन्च करते हैं उसे एक लाइसेंस नंबर मिल जाता है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. तो इस ऑफिस में उनको काम मिला एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट. वाइल ही वॉज सपोज टू बी सपोर्टिंग और हेल्पिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, मतलब इस ऑफिस में वो लोगों को हेल्प करते. कौन से लोगों को हेल्प करते? उनकी इन्वेंशन में वो सपोर्टिव हैंड था उनका. जो लोग इन्वेंशन करते उस ऑफिस एसेसिंग हैंड थे, मतलब एक सपोर्टिव हैंड थे. Einstein was actually developing his own ideas in secret, लेकिन सीक्रेसी में Einstein अपनी आइडियाज डेवलप करते रहे. He said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. अब जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे एक डेस्क था, उसके ड्रॉर में वो अपने सारे थियोरेटिकल फिजिक्स के पेपर्स रखते थे. इसीलिए उस डेस्क ड्रॉर का नाम बन गया ब्यूरो. ब्यूरो मतलब अ टेबल विथ फ्यू ड्रॉवर्स, तो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. अब वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, which you will see later on.
बहुत ही इंटरेस्टिंग. द वे ही हैड एक्सपीरियंस आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स. मतलब कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट related to anything. They are measured in itself. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after the journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. For example, कई बार हम अपनी वॉच को एडजस्ट करते रहते हैं कि भाई हमारी तो 2 मिनट आगे हो गई, कई बार कहते 2 मिनट पीछे हो गई, किसी और की वॉच से हम मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं होगा. दैट इज वॉट ही सेड कि 2 परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, मतलब 2 क्लॉक्स, दोनों क्लॉक्स एक्यूरेट हैं, परफेक्ट हैं, अच्छे चल रही है. बट चलो 1 साल के बाद, 1 साल की जर्नी के बाद हम फिर मिलते हैं. अब चेक करो दोनों क्लॉक्स को, तो थोड़ा फर्क होगा रिलेटिवली. मतलब वन क्लॉक इन रिलेशन टू द अदर मे बी मूविंग फास्ट. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला which describes the relationship between mass and energy. You must be knowing this very clearly. E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass, and C for the speed of the light in a vacuum. अब एक बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है and very interesting it is. When you sit with a nice girl for 2 hours, तो चलो हम sitting together for 2 hours. सोच लो कि कहीं पे कैफे में बैठे हैं. अब जब दोनों 2 घंटे बैठे, उसके बाद नेचुरली घर तो जाना ही होगा दोनों को अपने अपने. तो दोनों को क्या लग रहा है, ओ इतने जल्दी टाइम पास हो गया. ऐसे लगा जैसे कि हम अभी 2 मिनट पहले ही मिले हो. Now, when you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. लेकिन अगर वो 2 में से किसी एक को या दोनों को या किसी को भी हम 2 मिनट के लिए जलते हुए स्टोव पे बिठा दें, तो वो 2 मिनट कैसे महसूस करेंगे? वो equal to 2 hours. This is called relativity. So this I always love to explain. I love this theory and square. And here you would see that while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. मतलब फेल होती जा रही थी, प्रॉब्लम्स आ रहे थे लाइफ में उनके, लव लाइफ में, प्राइवेट लाइफ. तो एक बाजू वो फिजिक्स के मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और दूसरी ओर खुद की लाइफ प्रॉब्लम में. एल्बर्ट एक्चुअली वांटेड टू मैरी हिज लवर, जो हमने स्टार्टिंग में देखा मिलेवा, जो इक्वली इतनी होशियार थी, राइट आफ्टर दे फिनिश देयर स्टडीज. बट एल्बर्ट की मम्मी ये नहीं चाहती थी. हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. शी थॉट मिलेवा who was 3 years older than her son, मतलब कि मिलेवा 3 साल बड़ी थी आइंस्टाइन से, मेरे बच्चे से. She was too old for my child. She was also bothered by मिलेवा's intelligence. और मम्मी को ज़्यादा क्या प्रॉब्लम लग रहा था? एक कि लड़की 3 साल बड़ी, और नेक्स्ट सेकेंड बिग प्रॉब्लम विद द मदर वॉज कि लड़की बहुत होशियार थी, इंटेलिजेंट थी. ये उसकी मम्मी को पसंद नहीं आया. उसने तो डायरेक्टली आइंस्टाइन को कह दिया कि भाई ये लड़की इज लाइक अ बुक, शी इज अ बुक लाइक यू. हिज मदर सेड. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. बेचारे ने शादी ही कैंसिल कर दी अपनी. अब हुआ ये, द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903 इन जैन. फाइनली शादी हो गई 1903 में इन जैन. फिर उनके 2 लड़के भी बॉर्न हुए. दे हैड 2 sons. बट अ फ्यू years later
द मैरिज बिकेम वीक, मतलब फॉल्टर। लड़की बहुत इंटेलिजेंट, अब उसके भी अपने खुद के ख्वाहिशें थी लाइफ में, उसके एम्बिशंस थे, तो वो एक हाउसवाइफ बनना पसंद नहीं करती थी। सो मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, फिर तो लड़ाई झगड़े चालू हो गए दोनों की लाइफ में। द कपल फाइनली टुक अ डिवोर्स इन 1919। मतलब कितने साल उनकी शादी टिकी रही? वंस अगेन यू आर टू गुड एट मैथ्स, आई थिंक सो। सो 1919 minus 1903, right? Calculate. Einstein married his cousin Elsa the same year. So next you will see that Einstein new personal chapter coincided, मतलब अब ये उनकी लाइफ का नया चैप्टर आ गया और फेमस होने लगे वो और ज़्यादा। In 1915 he had published his general theory of relativity. ये तो उन्होंने पब्लिश कर दिया 1915 में, which provided a new interpretation of gravity. अब इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, उसे हम कहेंगे इंटरप्रिटेशन। सो उन्होंने किसी चीज़ को जैसे हम कभी एक्सप्लेन करते हैं, सो इन 1915 he published that which provided the people new explanation about gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which through the sun's gravitational field. ये उन्होंने बहुत ही क्लियरली कैलकुलेट किया था। What he calculated in advance? The extent to which the light from fixed stars would be deflected. Deflected मतलब change the direction, क्योंकि it hits something तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है through the sun's gravitational field. And the newspapers announced, that is proclaimed, his work as a scientific revolution. And Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was honored, he was gifted, or you can say he was showered with honors and invitation from all over the world and lauded by the press. And into power. You must be knowing what is Nazi. लेकिन बहुत डिटेल में नाजी के बारे में तो हम हिस्ट्री में लर्न करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जर्मनी में एक डिक्टेटरशिप होती थी, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, वैसे जर्मनी में नाजिज्म, टोटल डिक्टेटरशिप। सो व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूएस। मीन्स एमिग्रेटेड मतलब कि हमेशा के लिए कहीं और जाके सेटल हो जाना। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. फिर 5 साल के बाद न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में जो डिस्कवरी हुई, उससे अमेरिकन फिजिस्ट दे वर वेरी अपसेट। अमेरिका के सारे जो वहाँ के रहने वाले जो, क्योंकि डिस्कवरी किस चीज़ की हुई थी बर्लिन में? न्यूक्लियर फिजन। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म। काफ़ी लोग भाग गए थे फैसिज्म से। फैसिज्म मतलब क्या? आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, एक पार्टी रूल, डिक्टेटरशिप। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड ऑल्सो फ्लेड अवे एंड सेटल्ड इन यूएस। तो आइंस्टाइन की तरह बहुत सारे लोग चले गए थे जर्मनी से टू यूएस, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. अब डर ये था कि नाजिज ने डिस्कवरी की न्यूक्लियर फिजन की, तो अब तो वो आसानी से एटॉमिक बॉम्ब बिल्डअप करके यूज करेंगे वर्ल्ड में। तो ये एक बहुत बड़ा डर था लोगों को वर्ल्ड में। अब एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ कलीग,
रिक्वेस्ट ऑफ अ कलीग मतलब अर्जिंग ऑफ अ कलीग. अब कलीग मतलब वो जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे या बिजनेस में. तो आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, मतलब उसके कलीग ने रिक्वेस्ट की आइंस्टाइन को, एंड सो ही रोट अ लेटर. And he wrote this letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी वॉर्न कर दिया था. वॉर्न मतलब अलर्ट, अवेयर. और क्या लिखा था उन्होंने? अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा बॉम्ब कहीं पे एक्सप्लोड कोई करे, सपोज पोर्ट पे, सी पोर्ट, तो ये पोर्ट तो डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन आसपास का बहुत बड़ा फेल टू हैव एन इफेक्ट. और उनके वर्ड्स का इफेक्ट हुआ. अमेरिकन्स डेवलप्ड एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. अब ये तो बहुत ही अलग इफेक्ट हुआ कि अमेरिकन्स ने भी अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट में एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया. और कहाँ पे जाके ड्रॉप किया? जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. ये भी बहुत ही डिटेल में हम लर्न करेंगे इन हिस्ट्री. टिल देन लेट्स मूव अहेड. एंड आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन, मतलब वो बहुत ही दुखी हुए by the extent of this two cities destruction in Japan. This time he wrote a public missive to the UN. Missive मतलब एक public letter, बहुत ही लंबा लेटर, ऑफिशियल लेटर लिखा उन्होंने. The formation of world government, कि अब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, उन्होंने प्रपोज किया उस लेटर में. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. अब जब उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था पहले, उसकी इफेक्ट क्या हुई कि अमेरिका ने एक एटम बॉम्ब बनाया, जाके जापानीज सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन इस लेटर का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. फिर उसके बाकी के ईयर्स उनकी लाइफ के, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी उनकी लाइफ इन्वॉल्व रही. एजिटेटिंग मतलब ही वॉज ट्रबल्ड. एजिटेटिंग, ही वॉज कंटिन्यूसली विथ सॉरो. ही वॉज कंटिन्यूसली रिक्वेस्टिंग पीपल टू पुट एन एंड टू दिस यूज ऑफ, कि भाई ये यूज नहीं करना है, हमें प्रोड्यूस नहीं करना है. एंड ही स्टार्टेड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी एज अ फिजिस्ट टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. अब नेचुरली आज कोई बहुत फेमस आदमी कैंपेनिंग करे किसी अच्छे चीज़ के लिए, तो नेचुरली हम फॉलो करेंगे उन्हें, बिकॉज ही इज़ अ पॉपुलर पर्सन, ही इज़ अ सेलिब्रिटी. उसी तरह से आइंस्टाइन ने भी अपनी पॉपुलैरिटी कहाँ पे यूज़ की? इन कैंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary. लोगों ने उनको मान सम्मान दिया as a visionary. Visionary मतलब a person who can think about the future in an original and बारे में सोचे बहुत ही इंटेलिजेंट वे, उसको हम कहते हैं विजनरी. फ्यूचर का हम सोचते हैं, लेकिन गलत शलत नहीं, बहुत ही इंटेलिजेंट वे फ्यूचर के बारे में सोचना. एंड तो आइंस्टाइन वॉज ऑनर्ड एज अ विजनरी एंड एज अ वर्ल्ड सिटीजन as much as a scientific genius. So with this, we end the lecture of today over here, and I hope that you have understood and enjoyed the lecture. If any query, any doubt, please give me a call. Thank you and take care, dear children.